In the last session, we have explored the Supreme Court website. सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट में आप जब देखेंगे यहाँ पे है so many links are there. Just will take around 5 minutes to review to refresh the last discussion. So there is this is I'm coming on the Google. Here you will type Supreme Court of India. So click the first link. Either you can type www.sci.gov.in, this part. In this browser window, so you will find out this particular website. अब आप देखेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर कई सारे लिंक है ऊपर में। अबाउट अस, दिस इज ग्रुप ऑफ लिंक जिसके अंदर हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, jurisdiction, calendar, committee, organization, and all these part is there. Another is judges, chief justice and judges existing, former chief justice and judges, judges roster, judges library, asset of the judges, collegium resolution, service के अंदर cause list, case status, daily order, judgment, office report, caveat, display board, ई सर्विस के अंदर आप देखेंगे ई फाइलिंग, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, ग्रीवांस स्टेटस, ईएससीआर, डीजीएससीआर, ऑनलाइन अपीयरेंस, फिजिकल हियरिंग, सुस्वागतम, ई पास रिलेटेड एंड नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड। एडवोकेट्स बारे में भी बहुत सारे लिंक हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यूआर एग्जामिनेशन, गाइडलाइंस एंड ऑर्डर्स, डेजिग्नेटेड सीनियर डेजिग्नेशंस, एप्लीकेशन, senior advocate applications, forms, law forms, lawyers chamber, allotment, legal ad, and so on and so forth. Court, fee calculator, limitation calculator, interlocutory application calculator, case category, default list, notices, FTR, tender, judicial clerkship, recruitment, press release, live streaming, basic structure, webcast, मल्टीमीडिया, फोटो गैलरी, इतने सारे चीज आपको फर्स्ट गो इन टॉप रो ऑफ द वेबसाइट ये आपको मिल रहे हैं। थोड़ा आप नीचे जाएं, ऑन द वेबसाइट दिस इज द अनदर रो ऑफ द लिंक विच इज अवेलेबल हियर, विच इज द कॉज लिस्ट, केस स्टेटस, जो हमने ऊपर देखा है ऑलरेडी। Something is repeated here: daily order, judgment, office report, caveat, e-filing, display board and hackathon. ये सेकंड रो ऑफ लिंक है आपके सामने। थर्ड पॉइंट पे आप जाएं तो यहाँ पे अपडेट, अगेन जजमेंट, ऑर्डर एंड लिस्टिंग नोटिसेस। Here is the view all. Something is available there, few links, but so many links are there. So what I want to point out, that is the one thing, one area, one row is there, which is the group of links. Another row is there, which is the individual links. Third column or a row, we can say this is the update, judgment, order, and this. This is the third row of link. And the fourth row of link is there, fourth and fifth. Landmark judgment summaries, right to information, ESCR, DGSCR, this data, Suswagatam, Judges Library, Center for Planning Research, NLSA, and E-Committee, and so on and so forth.
And finally, one more link is there: press release, tenders, recruitments, and there is a calendar of the month. And lastly, in the footer part, these things are there: accessibility, guided tour, Indian code, argument transcript, employees corner, officers and officials, amenities, FAQ, pay scale, account, officer servant rules, museum, webcast, telephone directory, step taken during COVID, and important links. ये सारे एंट्री सोर्सेस आपको दिखेंगे ऑन दिस वेबसाइट। पार्ट स्पेसिफिक पार्ट जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोगों को डिस्कस भूलना नहीं चाहिए, वो अब हम वन बाय वन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और वहां पर मतलब अपने आप को रिमाइंड कराना चाहते हैं कहाँ पे कहाँ मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप देखें कि वंस वी आर जस्ट डिस्कसिंग रिगार्डिंग अबाउट अस, इस अबाउट अस में 3 लिंक है जिसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। वन इज हिस्ट्री, अनदर इज कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड इज ज्यूरिडिक्शन। तीनों से क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में टच करता है, एवरीवन शुड नो। आपको मैं क्लिक करके दिखाता हूं। वंस वी विल गो टू द हिस्ट्री, सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ व्हाट? हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये एक पेज एक्सप्लोर किया हुआ है। समथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। इसको जब आप देखेंगे तो कुछ नहीं, बस छोटा सा फोकस कीजिए। देयर इज अ 3 पिक्चर्स अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन, isn't it? Just go to the third picture, this one. यहाँ पर ये लिखा हुआ है, which is written there। इस पिक्चर को जरा आप ध्यान से देखें और नीचे से पूरा हिंट लें तो आपको पता चलेगा। फ्रॉम लेफ्ट, यानी दिस साइड टू दिस साइड, फर्स्ट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड इज श्री SR दास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थर्ड इज डॉक्टर S Radhakrishnan, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन Iyengar, A Iyengar, Speaker Lok Sabha, and at last fourth is this Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। But important part is this: on the occasion of inauguration of the Supreme Court building on 4th August 1958, तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेजेंट बिल्डिंग है, इसका उद्घाटन का मौका था वो, and it was happened into the 1958। ये 50 नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको जो बताना चाह रहा था, जिसके लिए मैं यहाँ लेकर के आया था, इट इज ऑन द 4th अगस्त, जो मेरा बर्थडे है। Very good, very good. Very good, sir. Good, Going good confidence. तो दिस इज द कनेक्शन। और दूसरा कनेक्शन ये है कि मेरा एनरोलमेंट 25 जनवरी का है, और 26 जनवरी इंडिपेंडेंस, सॉरी, रिपब्लिक डे इज डायरेक्टली कंसर्न टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज अनदर कोइंसिडेंस। बट एनीवे, मैं उसमें उलझना नहीं चाहता, ना ही मैं यहाँ पर आपको अपना बर्थडे याद कराना चाह रहा हूँ। बट मैं थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ कि कितने क्रूशियल मोमेंट के पिक्चर आपके सामने हैं। देख करके भी थोड़ा सा एक अलग फीलिंग होता है। So this was the history. Again, I'll come to the constitution. So you will see there are certain heads. Constitutions बहुत ही
छोटे-छोटे शब्दों में एक समरी आपके सामने होता है और उसको ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए। Even the constitution of the Supreme Court is there, and this is concerned to the not constitution of India, this is concerned to the constitution of about us. About us means the Supreme Court. So ये तीनों हेड जो देख रहे थे आप, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुरिडिक्शन, दिस इज कंसर्न टू अबाउट अस. अबाउट अस मीन्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. थर्ड पार्ट इज द जुरिडिक्शन. जुरिडिक्शन इज अगेन द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसको मतलब इससे कंसर्न एक असाइनमेंट हो सकता है कि वी मस्ट हैव टू समराइज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इनटू 100 वर्ड्स और 1 पैराग्राफ कि क्या है. Another was the judges. So about us के अंदर ये 3 कॉलम है जो इंपॉर्टेंट है. So everyone has to read. मुझे लगता है कि एक बार पढ़ना चाहिए ताकि एक बहुत ही क्लोज और डिफरेंट फील आता है इसको पढ़ने के बाद. मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा कि जजेस वाले में क्या है, कोलोजियम में क्या है. सर्विसेज के लिए हमने डिस्कस किया था. इट वाज द जजमेंट और दिस सर्विसेज इज कंसर्न रिगार्डिंग ऑल द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिशनर्स. ई सर्विसेज के अंदर हमने 2-3 चीजें देखी थी. इट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट ईएससीआर एंड डीजीएससीआर, और ये दोनों चीजें वहां अवेलेबल हैं नीचे फर्स्ट पेज पे भी. सो आइदर फ्रॉम दिस ऑप्शन और डायरेक्टली ट्रैक डाउन करके आप वहां से देख सकते हैं. देखिए डीजीएससीआर एंड ईएससीआर इज देयर. सो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे होम पे, दिस इज द मेन पेज, एंड you will again find out here ESCR and DGSCR. The same link is there. तो या तो आप यहाँ से आ जाए या फिर ऊपर वाले सर्विसेज के थ्रू. बट एनीवे मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था और यहाँ पर ये 2 लिंक इंपॉर्टेंट हैं. मैं सर्टेन पॉइंट पे इसको जरूरत पड़ेगी तो एक्सप्लोर करूंगा, बट नॉट राइट नाउ. एडवोकेट्स वाले लिंक पे, ग्रुप ऑफ लिंक्स पे, वन इज द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड and second is the AOR examination. We will come back again on these 2 parts today. Designation of senior advocate. Another is this forms. Forms is again very important and helpful for us. In fact, we should enter into that. But give me just 2 minutes. I will come back again. कोर्ट फाइलिंग में आप देखें तो यहाँ पर एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन है. इसको मैं जब क्लिक करूं और जब मैं पूरी लिस्ट देखूं, देयर इज द 1 2 3, कितने तरीके के एप्लीकेशंस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में. देन वी आर फाइंडिंग हियर 395 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. This is the exhaustive list of all the applications which can move into the Supreme Court. और इसका जब आप हेड देखेंगे ना, it's a self-explanatory. For example, grant of interim relief, vacating a stay, early hearing application, intervention application, addition, deletion and modification of party, amendment in record, ex parte add interim relief, interim injunction and so on and so forth. So फिर मैं दूसरे पार्ट पे आता हूँ, नोटिस एंड सर्कुलर पे. तो नोटिस एंड सर्कुलर यहाँ से आपको मिलेगा. न्यूज एंड इवेंट्स पे आप देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा था, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. थोड़ा सा मैं एडवोकेट्स वाले पे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में मैं लास्ट पे आना चाह रहा हूँ. लेकिन एक और लिंक जो मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था, वो लिंक था यहाँ पर. इसके बाद न्यूज एंड इवेंट्स के बाद एक ट्रिपल डॉट लाइन है. इस लाइन को क्लिक करेंगे तब आपके पास आता है ये पब्लिकेशन.
और इस पब्लिकेशन में इतने सारे लिंक हैं, इसको आपको एक्सप्लोर करना है। सुप्रीम कोर्ट, इसमें देखिए लिंक क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कोर्ट्स ऑफ इंडिया, कोर्ट न्यूज, एनुअल रिपोर्ट, फुल कोर्ट रेफरेंस रिपोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट। आप जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए। फर्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, अनदर इज द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। यदि मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे क्लिक करूं, आप ये देखिए, ये आपको मिल रहा है, हैंडबुक इज अवेलेबल हियर। सो ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि हैंडबुक है कहाँ, संतोष मैम? Right, नाउ sir. नाउ दिस इज अ हिडन प्लेस, क्योंकि पूरे स्क्रीन पे वो आता नहीं है, एक जगह पे उसको एक्सप्लोर करना है। सो दिस पार्ट इज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इसको मैं फिर से मैं क्लोज कर रहा हूँ। इस 3 लाइन्स पे जब आप क्लिक करेंगे, दिस 3 लाइन्स इन द फर्स्ट रो फॉर द लिंक्स, अब आप देखिए यहाँ पर ये खुल रहा है। दूसरे पे यदि मैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स पे क्लिक करूं, देन ये पेज खुलता है और यहाँ पर 3 अलग अलग डिफरेंट पीडीएफ अवेलेबल हैं। वन इज द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 पीडीएफ 66 MB, अनदर इज द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013। और ये कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन, आप देखिए, दीज आर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स। और इस दोनों डॉक्यूमेंट्स की कितनी जरूरत है हमारे एओआर एग्जाम के डिस्कशन में, ये कहने की जरूरत नहीं है। ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नाउ ये दोनों तो रूटीन पार्ट हैं, इस रूटीन पार्ट में मैं बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता। मुझे जो डेमोन्स्ट्रेट करना था उससे थोड़ा सा अलग मैं जाना चाह रहा हूँ। ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट। तीसरा पार्ट में यहाँ पे क्रॉनिकल में, सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल, दिस इज द फर्स्ट लिंक इन द पब्लिकेशन। इस लिंक पे मैं आपको क्लिक कर रहा हूँ, आप जरा देखिए, ये पर्टिकुलर पार्ट आपके सामने होता है और आप जब इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखेंगे तो देयर इज आर्काइव्स रिटन देयर। उससे पहले यहां पर लिखा हुआ है, आर्काइव्स के अंदर है इशू 1 नवंबर 2023, इशू 2 दिसंबर 2023, इशू 3 जनवरी 2024 एंड सो फोर्थ अप टिल हियर द इशू 11 सितंबर 2024। यानी नेक्स्ट मंथ में जो इसका इशू रिलीज होना है, इट वुड बी द 12th। कंप्लीट 1 साल के डेटा आपके पास यहाँ पर है। So why I am showing all these things and how this is concerned for the exam, लेकिन इन बिटवीन आपको 2 लिंक है, this one and this one, and third is the audio newsletter। इसको जब आप क्लिक करेंगे then you can listen the entire things is written there। flip view अलग है। once PDF view is there, this is the chronicle। ये 11th इशूज आपके सामने है और इस 11th इशूज में आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, देयर इज द ओनली 56 पेज ऑफ दिस न्यूज़लेटर्स। मुझे पेज में अभी उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको इनलार्ज करूं और यस थोड़ा सा नीचे जाऊं। दिस इज द पेज नंबर 3। name of editors are written there, but the first point, this is the index catalog index of this contents। So first one is the fresh from the bench।
थोड़ा और मैं नीचे जाऊं और इसको जरा एक्सप्लोर करूं, आप देखेंगे फ्रेश फ्रॉम द बेंच इज दिस, और पेज देखूं तो ये पेज नंबर 4 से स्टार्ट होता है, फ्रेश फ्रॉम द बेंच in the month of September, and we are in October. So most latest part is there. Just let us watch how many cases are there. So one case is State of Punjab versus Devinder Singh. पहले मैं जरा ये दिखा दूं, पेज नंबर 4 से स्टार्ट होता है ये, और इट इज कम अप टू अप टू अप टू अप टू दिस, दूसरा सेक्शन शुरू हो गया, ये आ गया आपका पेज नंबर 7. So this is the only 4 pages dedicated for this particular part. Or how many cases are there? See, the case number 1, the State of Punjab versus Devinder Singh, and citation is 2024 INSC 562. It was discussed regarding sub-classification of scheduled caste is constitutionally permissible. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं अभी, नहीं, I'll come back again, थोड़ा सा मैं रुक जाऊं. सो कंप्लीट एक फ्लेवर आपको मिलता है यहां से ही कि ये केस किस चीज से कंसर्न है, क्या है इसके अंदर. लेकिन एक छोटा सा एक शॉर्ट आर्टिकल आप जरा देखिए. दिस आर्टिकल इज ऑलमोस्ट बेंच स्ट्रेंथ डिस्कस करता है, और फाइनली वन वन पेज, कह लीजिए 1 पेज के अंदर ये पूरा कंक्लूड कर देता है कि क्या डिस्कस किया गया था. तो जो जो मेन पार्ट है, ऑल द रेशियोज आर अवेलेबल हियर. नाउ दूसरा जब आप देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, दिस इज द citation. What was in this citation? LG not bound by ad and advice of the Council of Minister to nominate a member of DMC. So this is the specific case for to nominate members to DMC. First, LG not bound by the ad and advice of the Council of Minister. So यहाँ पर यदि मैं full stop कर देता, या someone can do that, then it is not complete, not completed, because the condition further शुरू होता है और यहाँ complete होता है. तो एक चीज आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, पहली बात तो इस कंटेंट से आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा कि इस जजमेंट में हुआ क्या था. नंबर 1. तो जब कभी भी वन लाइनर रेफरेंस आप लिखेंगे तो इस साइटेशंस के बाद सिर्फ इतना लाइन लिखेंगे तब भी चल जाएगा. संतोष मैम, जी सर. am I right or wrong? Sir, absolutely right. Now if certain flavors आपको चाहिए तो वो नीचे भी है. So all the summaries are also available, and this is not the one page, it is containing only one paragraph. You can see that in your screen, right? So third judgment also having this part, this is concerned to lottery sales by the state are not a service, exempting wholesaler from service tax. So this is the third part. और उसके बारे में क्या लिखा हुआ आप नीचे से पिकअप कर सकते हैं. तो थर्ड, फोर्थ जजमेंट, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 जजमेंट हमारे पास हैं. तो थोड़ा और मैं बैक जाऊं और मैं आपको ये दिखाऊं फर्स्ट इशूज.
let me, sorry, was closed. This is the first page. I'll go to the fourth, Sida. This is fresh from the bench. Only one case is there, and that case milestone in justice is there. Sealed cover case. There is a citation. Broadcasting Limited, Madhyam Broadcasting Limited versus Union of India, 2023 INSC. This is talking about on 5th April, a 2 judges bench of the Supreme Court delivered a significant judgment in the case of such and such, commonly known as Media One judgment, dealing with the scope of the proportionality test. और ये टेस्ट आपको हर हालत में टच करने ही करने हैं. The court held that the standard of proportionality, now they are talking about, so proportionality test was properly crystallized and discussed and realized in which judgment? It is the Puttaswamy judgment, 9 judges bench. Correct. Now this is something expansion of that. And what is the extension? अरविंद जी माइक ऑफ कर लें. And that extension is, now they are not talking about the proportionality test only, they are talking about the standard of proportionality test. तो देख लीजिए यही दो वर्ड में कितना फर्क पड़ जाता है अंडरस्टैंडिंग में, और कैसे स्कोप एक्सपेंड करता है, या एम्बिट रिफाइन होता है, प्रॉपरली पिन पॉइंटेड होता है. तो ये जजमेंट उस जजमेंट से क्यों अलग है? क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के स्टैंडर्ड को के लिए एक गाइडलाइंस लेट डाउन किया हुआ है. द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी must be used to access the reasonableness of the limitation to, this is the condition, standard kiska, assess the reasonableness of the limitation on both substantive and procedural rights. एक जगह नहीं है, this is the complete. The court also disfavored the sealed cover approach and stated that the basic principle of law is that all materials which is relied upon by the parties during judicial proceedings must be disclosed. Sir, what is the page number, sir? Page number 4. Simply, this is one and only judgment in first newsletter. So the basic principle of law is that all materials which is relied upon by the parties during the judicial proceedings must be disclosed. The non-disclosure of materials to the affected party and its disclosure in the sealed cover makes the process of adjudication vague and opaque. क्यों? जजमेंट अच्छा है ना, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं इसका रीड भी करने का मेरा वो कंसर्न नहीं, मेरा कंसर्न ये है, और एंड आई विल शो यू कि दिस इज द ओनली जजमेंट अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर न्यूज़लेटर. सो मेरे कहने का मतलब यहाँ सिंपल है कि आइदर वन और मोर एक फ्रेश फ्रॉम द बेंच एवरी मंथ जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने आ जाता है न्यूज़लेटर से. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. So पिछले 12 महीने के
ये न्यूज लेटर्स 11 महीने ही हमारे पास अवेलेबल है, नेक्स्ट मंथ विल कम 12, और यदि मार्च में, मई में, जून में एग्जाम होता है तो हार्डली 18 महीने के लिए होंगे। तो तब तक यदि मैं इसी न्यूज लेटर्स के इतने ही पोर्शन को हर महीने यदि मैं पढ़ना शुरू करूं तो मुझे अपडेट क्या चल रहा है ये तो पता चल जाएगा। दिस इज द वेरी सेलेक्टिव, इंपॉर्टेंट, लैंडमार्क and required certain attention, isn't it? Yes, sir. और यदि हमने ऐसा किया तो एक पार्ट तो क्लियर है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में हमको एवरी जजमेंट स्कैन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट एंड शो यू कि सिर्फ ये 10, एक मिनट में जरा ये दोनों को बंद करूं, ये जो टोटल 11 है एंड होपफुली 6, 7, 8 और आएंगे, यानी अराउंड 20 हो पाएंगे बिफोर द एग्जाम, नॉट 20 बट 17 और 18। दिस इज सेल्फ सफिशिएंट टू बीइंग अप टू डेट what is going on into the Supreme Court on certain particular point, certain not particular but diverse point जो भी Supreme Court में हुआ हो। Sir, especially the judgments which Supreme Court itself considers to be important. Yes, yes. So अजय जी आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि judgment exactly which is important in by the Supreme Court committee and all, but not all judgment, right? मैं इस पे emphasis इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यदि आप दूसरे कॉलम को यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, मैं फिर से एक कॉलम को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इस वेबसाइट पे, मैं सीधा होम पे जाना चाहता हूँ। होम पे जाने के बाद इस कॉलम में जाना चाहता हूँ यहाँ, और ये लैंडमार्क जजमेंट को देखना चाहता हूँ। तो ये लैंडमार्क जजमेंट को जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर सारे जजमेंट का जो भी जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, जैसे एक जजमेंट 3/10/24 को है, this is the cause title of judgment, writ petition is this. So what was the subject? Challenge to caste based discrimination in prisons. आप समझ रहे हैं, ये कास्ट से कंसर्न है, लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन, समझिए हर वर्ड एक नया नैरो पॉइंट पे ले आता है। यदि मैं सीधा कास्ट कहूं, बहुत ब्रॉडर है, कास्ट वेस्ट कहूं मतलब सर्टेन परसेप्शन और एक्शन आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन कहूं कंप्लीट एक्शन है, कास्ट वेस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन। सो वो एक पार्ट है। अब जैसे ही आप जजमेंट पे यहाँ क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा ब्रीफ आपके पास है, बेंच स्ट्रेंथ एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन। जैसे ही मोर रीड पे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके पास एक शॉर्ट एंड स्वीट थोड़ा सा ब्रीफ है, और जजमेंट देखना चाहें तो आपके पास ये पूरी जजमेंट है जिसके साइटेशंस हैं, जो 148 पेजेस के हैं, जिसका एक या दो पेज में रिड्यूस किया हुआ है। जस्ट आई एम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। मैं सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं, यदि आप रिगरसली अप टू डेट रहना चाहते हैं, then we need to go through this particular link। यहाँ पर आपको वीकली बैठ करके पढ़ लेना चाहिए, जितना यहाँ दिया हुआ है एटलीस्ट क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ लेना चाहिए, और उसके आंसर्स कैसे आए हैं उसको समझ लेना चाहिए। ये पूरे आपको लिस्ट मिलेंगे, और हो सके तो नोट्स आप इसी से बना लें, बहुत ज्यादा करने की जरूरत क्या है, अप टू डेट आप यहाँ से भी रह सकते हैं। Here is again the landmark judgment summarizes, but it may be the part of next newsletters जो सुप्रीम कोर्ट अभी रिलीज करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बतला दूं कि ये क्यों मैं दिखला रहा हूं,
क्योंकि आप अपडेट होंगे और आपके लिए जरूरी यहाँ ईयर वाइज आप चाहें तो जिस ईयर्स का कोई भी जजमेंट ढूंढना चाहे ढूंढ सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। दिस इज 17 एंड ऑनवर्ड्स। कंसर्न ये है कि सब्जेक्ट सेंट्रिक आपको यहां से मिल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि किस सब्जेक्ट, इसको समझे बगैर यदि हम यहाँ लैंड अप करेंगे वी विल सर्टेनली वेस्ट आवर टाइम। तो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि पहले इसको चेक कर लेते हैं, अपने काम का कुछ मिलता है, देन वी विल प्रोसीड फर्दर, और हमको पता रहेगा ना किस जजमेंट में क्या है ना। उसके लिए हम इस पर्टिकुलर पोर्टल को यूज करते हैं। ये फर्स्ट टाइम हमारे सामने आया है और ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट एंड समटाइम्स इफ यू विल गो दिस पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन को यहाँ क्लिक करें और यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिक में जाते हैं तो यहाँ पर क्रॉनिक है। जो भी जजमेंट दोनों में मैप कर रहा हो आप उसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। दोनों बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा टाइम है। तो और ये दोनों वो पार्ट है जहां से जितने भी एग्जाम होने जा रहे हैं जुडिशियरी रिलेटेड, कोर्ट सेंट्रिक, हर जगह यहां से क्वेश्चंस पिकअप होंगे। तो मैं उनके लिए भी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं जो जुडिशियरी सेंट्रिक है संतोष मैम, और anywhere in any types of examination is concerned regarding judiciary, even यूपीएससी एस्पायरेंट को भी ये 4 पेजेस जरूर पढ़ने चाहिए और समझने चाहिए, सो दैट कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो यूपीएससी के एग्जाम में छूटे नहीं, और क्या लिखना है कैसे लिखना है वो भी बिल्कुल ऑप्टिमाइज पैटर्न पे। बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला। बट एनीवे मैं थोड़ा आगे प्रोसीड करूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये 2 पेज, 1 पेज, 4 पेज सारे न्यूज़लेटर का निकाल के सिर्फ पेज का एक कंपाइलेशन बना लिया जाए और उसको यदि स्टडी किया जाए तो पूरे साल भर के इंपॉर्टेंट जजमेंट से अपडेशन हो जाएगा। अजय जी मैं सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। अरविंद जी आपकी क्या ओपिनियन है? जी सर बिल्कुल है ना? तो And- चले हम एंड इवन आई बिलीव मतलब जैसे मैं इनको देखता हूँ, आई ऑल्सो यूज टू चेक द जो इसका एक एनुअल जो लेटर निकलता था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, एनुअल डाइजेस्ट आता था। हाँ, एनुअल डाइजेस्ट आता था। I learned how अजय जी to summarize पूरे चीज को हाँ छोटे में कैसा लिखना है, वो भी मैंने यहाँ से पढ़ कर सीखा। हाँ इवन रेफर कैसे करना, वो सबके हेडिंग्स में वो लिखा हुआ है कि दिस जजमेंट साइटेशन इज दिस एंड सब्जेक्ट कैटेगरी इज दिस। तो ये सारे वो एक्सक्लूसिवली वहां मेंशन किए हुए हैं। सो दिस इज द वेरी गुड पार्ट जो आपके लिए और हमारे लिए अवेलेबल है। पहले नहीं हुआ करता था ये, पहले बिल्कुल नहीं हुआ, इवन इन द ऑडियो फॉर्म कि आप उसको बस क्लिक कीजिए और सुन लीजिए। इतना स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए थी। बट एनीवे इस फास्ट स्पीड लाइफ में इसकी भी जरूरत है। मैं थोड़ा सा और ये न्यूज पब्लिकेशन पे मैं वापस जा रहा हूँ। इस पब्लिकेशन में दूसरा सेगमेंट उस मैंने इस सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल में मुझे सिर्फ एक ही चीज डिस्कस करना था, फ्रेश फ्रॉम बेंच। दूसरा पार्ट हम बी आर अम्बेडकर वाले में जाना चाहते, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये देखिए ये इनकी लिंक है, थोड़ी सा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कभी भी आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं एज पर योर। ये इनके बारे में एक अच्छा खासा आर्टिकल है, मैं इस आर्टिकल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी फॉर दिस मोमेंट। इस जगह पर मैं इंटरेस्टेड हूं दिस स्पीचेज। इसको मैं जब क्लिक करूं, इस स्पीच में बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्पीचेस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें उन्होंने सर्टेन सब्जेक्ट पे सर्टेन कोटेशन बोले थे, मैंने बात कही थी जो आज तक वो रोम करता है बहुत लाउडली।
एनीवे उनके ये 4 पीडीएफ पार्ट हैं जो बी आर अम्बेडकर के स्पीचेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोले गए थे, उसकी ट्रांसक्रिप्ट है। एक यूट्यूब वीडियो है उनके स्पीचेस से रिलेटेड जो असेंबली में हुए थे, पता नहीं कहां से कैसे लोगों ने अरेंज किया है, सब बहुत रिगरस वर्क। एंड अल्टीमेटली जरा आप देखें, जो जहां मैं फोकस करना चाहता हूं, फोकस पार्ट ये है, आर्टिकल 32 वो पार्ट है जो आपको एग्जाम में आना ही आना। और आर्टिकल 32 पे बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था वो यहां लिखा हुआ है। इफ I was asked the name any particular article in the constitution as the most important, an article without which this constitution would be nullity. I could not refer to any other article except this one. It is the very soul of the constitution and it is the very heart of it. आपको ये लाइन स्पेसिफिकली बहुत बार सुना होगा, एंड इट वाज द डेट ऑफ 9 दिसंबर 1948। ये कोट जजमेंट में आप देखेंगे तो वो भी मुझे लगता है मोर देन 100 टाइम्स सर्टेनली मिलने वाला है, और इसकी रिलेवेंसी एनी टाइम है जब भी 32 की है बात होगी। मेरा कंसर्न ये है कि आप इस लाइन को एकदम बाय हार्ट करके मेमोराइज कर ले, जब मौका मिले वहां पर आप इसको एक्सप्लोर कर ले। अजय जी, हाउ इज दैट आइडिया? इट इज़ अ वंडरफुल आइडिया सर, स्पेशली दीज स्मॉल स्निपेट्स अगर हम आंसर्स में लिखेंगे तो दैट वुड रिफ्लेक्ट। बिल्कुल, मैंने रिप्रोडक्शन है उनका ही स्टेटमेंट, अब रिप्रोड्यूस कीजिए, उससे ज्यादा असरदार और क्या होगा, कोट एंड अनकोट। सो बहुत ज्यादा नहीं है, एक छोटा सा कोटेशन ऑन द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा मैं रीड आउट कर दूं। however good a constitution may be, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad, because those who are called to work it happens to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot. The working of a constitution does not depend wholly upon the nature of the constitution. कहने का मतलब ये है, जो मुझे समझ आया, कि कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है बेकार हो, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शनरी काम कर रहे हैं वो यदि अच्छे होंगे तो अच्छा है, चल जाएगा अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है कि बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी जो फंक्शनरी हैं, जो भी हैं पूरे सिस्टम के, वो यदि अच्छे नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क है। Isn't it? कैसा लगा ये स्टेटमेंट? अजय जी? सर अगेन गुड डीप अंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं बोलने के लिए अच्छा है। हाँ, मैंने इसके कहने का मतलब है, ये जो रिलेवेंसी है ना बहुत जगह दिखता है। यस सर। और बहुत लोग जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को ब्लेम करते हैं, ये लॉ बदल दो, ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो, ये आपको बहुत फ्रीक्वेंट मैनर में मिलेगा। यस सर। However, the problem is not concerned to the document, either it is good or bad. Which functionary is there which is responsible for certain job assigned to them, this is the important part. If they are fail to discharge their own duty properly or best of his capacity, ये कहना ज्यादा सही रहेगा, then किसी भी डायरेक्शन में टर्न हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत कुछ, और अप्स एंड डाउन इस तरीके का चलता ही रहेगा। Isn't it? यस सर।
तो ये दूसरा कोटेशन था। अब कुल मिलाकर के आप जरा देखें तो ये 2 और ऊपर एक 3 और ये नीचे चौथा, 4 5 है बस। और यहाँ पर फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे इन्होंने ये कहा, कोई भी लाइन आप पिकअप करके आप जिसको आप चाहे आप अपने आंसर को बिल्कुल असरदार बना सकते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था और वो यहाँ पर था। बस ये स्पीचेस में मुझे इंटरेस्ट था, जो चीज यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि मैं क्या करता था कि पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट को डाउनलोड करके वो कोटेशन में आप लोगों को दिखाता था। अब मुझे मुक्ति मिलेगी, आप वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑलरेडी हियर और दिस इज द ऑथेंटिक पार्ट। इसके ऑथेंटिसिटी को डाउट नहीं कर सकते। नंबर टू यहाँ पर एक चीज और मैं आपको दिखाना चाह रहा था, दिस वाज द केसेस। ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के साथ शेयर किया है। इट इज द केसेस, कोर्ट केसेस आर्ग्यूड बाय बी.आर. Ambedkar. This is the case Yashwant Satwa Chowgule versus Emperor. It was concerned with the Criminal Procedure Code section 225 and so on and so forth. वो देख लीजिए. Here is Ambedkar and this for appellant, and this is the citation available. So total how many cases are there? There are almost around 29 cases where B.R. Ambedkar argued, even the citation with that. और ये citation AIR 1953 है, Constitution Framer. After framing the Constitution, वो उसी Constitution के तहत उनका जो argument है, वो अब आप देख रहे होंगे, देखेंगे कि क्या उन्होंने एडवांस किया था, कैसे किया था. Does it not little bit interesting part? अजय जी. यस सर। सो मुझे ये 2 चीज काफी अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि इसको आप जैसे भी इन्वॉल्व करेंगे, अब ये कहेंगे कि हर कोई ये कहता है कि बी.आर. अम्बेडकर ऑन सर्टेन पॉइंट सर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में ये कहा। अब आप ये कहेंगे कि बी.आर. अम्बेडकर आर्ग्यूड ऑन दिस लाइन लाइक दिस। एक डिफरेंट फ्लेवर ये क्रिएट हो जाएगा, वो डिस्टिंक्शन हो जाएगा, बिल्कुल यूनिकनेस आ जाएगा। Yes, sir, and that would also show how much of research you have done. हाँ हाँ हाँ, एक अलग मतलब उसको हम विट भी नहीं कर सकते हैं, डेलिक्वेंस भी नहीं कर सकते, बट एक सर्टेन थिंग जो है ना, एक हार्ट के अंदर वो एक म्यूजिकल वेव, स्पिरिचुअल वेव की तरफ मूव करेगा ये विद इन द कोर्ट फॉर एवरीवन। और होना चाहिए, इस तरीके का नॉलेज कभी भी यूज होता है, होना चाहिए, इसलिए मैंने ये किया था। बट मैं बहुत ज्यादा इसमें इंडल्ज नहीं होना चाहता, मैंने जो दिखाना था वो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी आप लोग एक्सप्लोर करें। अगेन फिर से मैं ये ट्रिपल डॉट पे जा रहा हूँ, फिर पब्लिकेशन पे, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी एक छोटा सा पार्ट है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, इसका एक अलग ही फ्लेवर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि काम से कोई कनेक्शन नहीं है। ये आप देख रहे हैं, कोर्ट्स ऑफ इंडिया प्रेजेंट, पास्ट टू प्रेजेंट। सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपाइलेशन किया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फोकस कर दूं आपको इस पर्टिकुलर इंग्लिश पार्ट। दिस इज इन ऑल द लैंग्वेजेस, आई मीन ऑलमोस्ट 10 लैंग्वेजेस। आप जरा ये देखिए, ये एक ही बुक के डिफरेंट लैंग्वेज हैं, गुजराती, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, असमी, बंगाली, मराठी, हिंदी, कन्नड़ा। ये बुक रखना चाहिए। इस बुक में मैंने स्पेशली आई शो समथिंग इनटू द इंग्लिश, तो ये लोकल लैंग्वेज में, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशानी नहीं होगी। इसका मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इंडेक्स को जब आप देखेंगे, पास्ट टू प्रेजेंट, मतलब जब से, पहले मैं दिखा लूं फिर आगे बात करूंगा।
This is the index. Chapter 1, beginnings, indigenous judicial structure, colonial conquest 1500 से 1700 तक, उसके बाद 1726 से 1860 तक चैप्टर ट्रिनिटी, उसके बाद 1861 से 1950 तक, एंड देन 1726 से 1950 which is King's Court and different era for this. Then new judicial orders और अब current conscience keeper of the independent India, the Supreme Court, guardianship. और अजय जी मैं एक चीज और आपको मैं बताना चाह रहा था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा सर। आपको मैं वो दिखा रहा हूँ, 2 मिनट मुझे वो टाइम दीजिए, I'll show you. So every साइंस स्टूडेंट के लिए ये सर्टेन प्राइड का मैटर है. होपफुली आप ये कर लीजिएगा. मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ड है ना पाई, मैथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है पाई. यस सर। एंड इट इज अ वेरी क्रूशियल, क्योंकि उसका जो वैल्यू अभी मैंने अनलिमिटेड जाता है, वो निकलता नहीं है. सो बहुत पहले मुगल पीरियड में जब जुडिशरी का शुरुआत हुआ था इंडिया में, तो उस पाई को जुडिशरी का सिंबल माना गया था. इट वाज द बैलेंस, मतलब पाई को मैंने इसको कहा गया था द स्केल ऑफ जस्टिस. पाई क्योंकि 2 विंग है वो, मैंने वेइंग मशीन के 2 विंग है वो. यस सर। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है ये. इट इज इंटरेस्टिंग सर। तो द स्केल ऑफ जस्टिस उसको कहा गया था, एंड दैट इज कमिंग, मतलब मुझे जैसा फ्लेवर है, कोई प्रूफ नहीं है. ये जो बैंड हमारे पास है ना, वो वहीं से कहीं ना कहीं कनेक्शन है उसका, पाई से. Absolutely right, sir. Absolutely right. पता नहीं, आई डोंट नो वेयर व्हाट इज द सोर्स. इट्स ओनली यू नो. No, sir. No, sir. I accept it. तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक लिंक को आज एक्सप्लोर कर रहा था. मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ, फिर से मैं वापस दूसरे पॉइंट पे जाना चाह रहा था बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. ये देख लीजिए, यहाँ से फिर से पब्लिकेशन, आज पूरा फोकस ऑन पब्लिकेशन है विच इज द हिडन पार्ट. कोर्ट न्यूज इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसका अपडेशन अब मर्ज हो गया है इसके अंदर. सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल एनुअल रिपोर्ट्स, इट्स बीइंग अपडेटेड लैंडमार्क जजमेंट के फॉर्म में. आप देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं. फुल कोर्ट रेफरेंस, एग्जैक्टली दिस इज इंपॉर्टेंट, वी शुड नो. रिपोर्टर्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर यहाँ से ही निकलने हैं. और ये ऐसे आप ढूंढ लीजिए, कहीं भी दिखाई नहीं देगा ये काम. नाउ any questions up to this particular part, especially for this particular publications, links available within the publications? Let me come on the page. सर एक बार और लैंडमार्क जजमेंट्स कैसे निकालने हैं उसके बता दीजिए सर प्लीज. मैं थोड़ा मिस कर दिया था. लैंडमार्क सर ये जजमेंट आप इंडेक्स नहीं, भी सॉरी, इंडेक्स भी बता दीजिए सर. इंडेक्स अभी बताए ना आप, अब इंडेक्स में आपको करना क्या है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे इस पब्लिकेशन वाले कॉर्नर डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ से पब्लिकेशन में जितने भी लिंक है वो सारे लिंक को आपको चेक करना है. प्रभाकर जी काइंडली माइक ऑन कर. इस सब को जैसे ही आप चेक करेंगे, आपको 1 by 1 पता चलेगा कि आपके काम का कौन सा और कौन आपके काम का नहीं. नंबर 1. नंबर 2, इसी पेज पे, फर्स्ट पेज पे आप जैसे ही 3rd 4th कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पहले ही आपको लिखा हुआ है एक्सप्लोर एंड कनेक्ट. इसका पहला ही लिंक है लैंडमार्क जजमेंट समराइजेशन, और इसी जगह पे आपको ESCR एंड DGSCR दोनों मिल जाएगा. और तीसरा इंपॉर्टेंट, मैंने ESCR, DGSCR एंड लैंडमार्क जजमेंट, ये 3 चीजें हमने प्रॉपरली अभी एक्सप्लोर किया, और इसके अंदर हमको कंसिस्टेंटली इन टच रहना है. और चौथा है हमारा पब्लिकेशन, और 5वां है हमारा ये एडवोकेट. वहां पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन है.
यहाँ आ जाइए आप। Now, the examination concerned 3 tabs is there, the lecture and videos and old questions. सारे मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस सारे मटेरियल्स को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए डिफरेंट तरीके से और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए, बिकॉज इन सारे मटेरियल्स में से किसी भी मटेरियल का रेफरेंस हमारे डिस्कशन में एनी टाइम अपीयर हो सकता है। यहाँ पर आप देखें लिंक कैसे जाएंगे, होम, एडवांस एंड योर एग्जामिनेशन। होम, एडवोकेट, सॉरी, एंड योर एग्जामिनेशन। एडवांस नहीं, एडवोकेट्स, सॉरी। So how was that? Very interesting, sir. Very knowledgeful. Today's session was even better than the last one, sir. See, Ajay ji, आप you can just close this recording now. But idea is this, यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ओवरऑल कवर करेंगे, मान लीजिए पूरे वेबसाइट के लिंक को मुझे कवर करना है, तो मुझे कितने टाइम लगेंगे, और वो टाइम इज अलॉटेड ओनली 1 hour. Now again,